Welcome SVPH to presentation on chapter number 11 Life in Southern India, and this is part 3 of our presentation. This is our final presentation. So students, in our previous presentation हमने जो वाटर स्पोर्ट्स होते हैं लक्षद्वीप आइलैंड पे उनके बारे में पढ़ा था. एंड देयर आर 3 मेजर वाटर स्पोर्ट्स. ठीक है, कौन कौन से 3 मेजर वाटर स्पोर्ट्स हैं? सर्फिंग, स्कूबा डाइविंग एंड स्नॉर्कलिंग. दीज आर एडवेंचरस स्पोर्ट्स. एडवेंचरस क्या होता है? जिसमें एक्साइटमेंट भी होता है और रिस्क भी होती है. सो लेट अस सी, उनको वॉच करते हैं कि एक्चुअली में स्पोर्ट्स होते क्यों हैं और ये क्या होते हैं स्पोर्ट्स और इसमें कितना एक्साइटमेंट है, राइट? हाउ एडवेंचरस दीज स्पोर्ट्स आर. सो वी विल सी फ्यू वीडियोज़. पहला वीडियो हम देख रहे हैं सर्फिंग का. ओके, व्हाट इज दिस गेम? दिस इज सर्फिंग. ओके, अमेजिंग वीडियो, राइट? फुल ऑफ एक्साइटमेंट, एडवेंचरस गेम, राइट? देख के आपके रोंगटे खड़े हुए? यस. सो व्हाट इज दिस गेम? दिस इज कॉल्ड सर्फिंग. ओके, और सर्फिंग के लिए आपको क्या है? आइलैंड की ज़रूरत है, राइट? कोस्टल एरिया, बिकॉज यू नीड बिग वाटर बॉडी फॉर दिस गेम. सर्फिंग के बाद एक और एक्साइटिंग वाटर गेम है, वाटर स्पोर्ट्स है. वी विल सी दैट वीडियो. इसका नाम होता है स्नॉर्कलिंग. SNORKLING, स्नॉर्कलिंग. ओके, स्नॉर्कलिंग में क्या होता है? पानी के नीचे स्विम करते हैं लोग. ओके, एंड देयर इज़ अ वाटर ट्यूब. आप यहाँ पे देख रहे हैं ये ट्यूब जैसी. तो ये ट्यूब जो है पानी से ऊपर होती है और यहाँ से इस ट्यूब के थ्रू ये जो डाइवर हैं वो ब्रीथ करते हैं. दे ब्रीथ यूजिंग दिस ट्यूब. और इसमें कोई अलग से ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं होता है. इसी ट्यूब के थ्रू जो स्नॉर्कलर्स हैं वो ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं. ओके,
was awesome, man. Yeah. All right, snorkel trip over. राइट, सो अनदर ऑसम वीडियो। देखा आपने स्नॉर्कलिंग में क्या है, जो भी अंडर वाटर फिशेज़ हैं, जो अंडर वाटर जो प्लांट्स हैं, वो सब हम अपनी आंखों से देख पाते हैं, एंड दैट इज़ अ रियल एक्साइटमेंट, राइट। सो सर्फिंग एंड स्नॉर्कलिंग के बाद एक और वाटर स्पोर्ट्स है, दैट इज़, व्हाट इज़ द नेम, स्कूबा डाइविंग, SCUBA diving. Okay, so what is this sports? We will watch the video. Images of an underwater photographer standing next to a colossal tornado of fish has been making its rounds on the internet. It has left many people in disbelief due to the sheer magnitude of its wonder. The researcher Octavio Alberto, who captured it all, assures everyone that it is a natural event and has released the footage to put everyone's doubt to rest. He's been witnessing this phenomenon for the last 3 years while working to protect the marine reserves of Cabo Polmo National Park in Mexico. He explains these are jackfish, performing the rituals of their courtship behavior. The conditions happened to be just right on this particular day, and after an hour of following the fish around, they began to execute this display. Octavio hopes his images provoke people to start thinking about the environment, more specifically in this case the ocean, dwindling fish populations, the health of marine ecosystems worldwide, and our role in it all. This stunning video has no doubt helped contribute to his goal, as we can all see what a shame it would be to lose such a magnificent performance. Take a look at Octavio's website in the link below to learn more about him and his. So this is also exciting, right? Just now you saw a video of scuba diving. स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्कलिंग में क्या फ़र्क है? स्नॉर्कलिंग जो है वो शैलो वाटर में होती है एंड यू ब्रीथ थ्रू अ वाटर ट्यूब, वेयर इज़ इन स्कूबा डाइविंग जो डाइवर है वो पानी में काफ़ी नीचे जाता है, काफ़ी डीप जाता है, और उसको ब्रीथ करने के लिए फिर एक ऑक्सीजन सिलेंडर जो है उसकी बैक पे होता है, उसकी पीठ पे। ओके, सो दैट इज़ द डिफरेंस। नाउ पॉइंट्स टू पॉन्डर। ओके, नंबर 1, the main geographical feature of southern India are: number 1, Central Highland, then Deccan Plateau, islands and coastal region. The Deccan Plateau is rich in mineral resources. The coastal area have many ports which are important for trade. The Andaman and Nicobar and the Lakshadweep are main group of islands in India. Andaman and Nicobar have 572 islands and Lakshadweep has 36 islands. Okay, now let us go through our question answer. So first is put a tick on the correct options. Correct options पे आपको क्या है, tick put करना है. Question number 1, the part of peninsular plateau lying to the north of Narmada river is called. सो एज यू नो पेनिनसुलर प्लेटो के 2 पार्ट हैं. ओके, वन इज सेंट्रल हाईलैंड एंड सेकेंड इज डेक्कन प्लेटो. तो नर्मदा रिवर के नॉर्थ में जो है सेंट्रल हाईलैंड होता है, एंड नर्मदा रिवर के साउथ में कौन सा पार्ट है इसका प्लेटो का, दैट इज डेक्कन प्लेटो, राइट. सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? You have Lakshadweep Island, Central Highland, Deccan Plateau. What is the correct option? B, Central Highland. और अगर ये होता आपका क्वेश्चन, the part of peninsular plateau lying to the south of Narmada river, then what would have been answer? Then answer would have been Deccan Plateau. Okay. Now question number 2. Dash port is a major trade center of coastal India. तो कोस्टल इंडिया का जो है मेजर ट्रेड सेंटर कौन सा पोर्ट है? नंबर 1 दिल्ली, बी इज़ विशाखापट्टनम एंड सी इज़ बिहार. नाउ दिल्ली इज़ नॉट अ कोस्टल सिटी. दिल्ली के पास में कोई समंदर नहीं है, तो दिल्ली में जब कोस्टल सिटी ही नहीं है तो वहाँ पे पोर्ट तो हो ही नहीं सकता ना. सिमिलरली बिहार से रिवर गंगा पासेस थ्रू. ओके, बट अगेन नॉट एन ओशन. ओके, कोई ओशन वहाँ पे नहीं है.
और पोर्ट्स कहाँ पे होते हैं, मेजर ट्रेड पोर्ट्स जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, कोस्टल एरिया में, समंदर के पास. सो ओनली ऑप्शन इज विशाखापट्टनम. नंबर 3, डैश आइलैंड्स लाई इन द अरेबियन सी. सो अरेबियन सी में कौन सा आइलैंड लाई करता है, सो दिस इज योर, सो इन अरेबियन सी लक्षद्वीप आइलैंड लाइज. अंडमान निकोबार कहाँ पे है, बे ऑफ बंगाल में. ओके, सो दिस इज नॉट द आंसर. एंड थाईलैंड is a different country, so this is also not an answer. So answer is Lakshadweep. Number 4, dash is a large plateau in southern and western India. So which is a large plateau in southern and western India? Option A, Mysore plateau. ऐसा कोई plateau है ही नहीं. Then Deccan plateau. Yes, this is the answer. Deccan plateau is a large plateau in southern and western India. Then Shillong plateau, ऐसा भी कोई प्लेटो नहीं है. नाउ क्वेश्चन नंबर बी, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग. ओके, तो आपको इनके लिए एक वर्ड राइट करना है. नंबर 1, अ क्रॉप ग्रोन इन द डेक्कन प्लेटो रीजन. ओके, सो कौन सी क्रॉप जो है वो डेक्कन प्लेटो रीजन में ग्रो होती है. यू कैन राइट राइस, कॉटन, टी, कॉफ़ी, ऑयल सीड. ठीक है. नेक्स्ट वन, a plateau lying in the central highland area. So central highland area में which plateau is lying? You can write Marwa plateau or Chota Nagpur plateau. Okay. Number 3, a major water body around the Indian peninsula. You know what is peninsula? So Indian peninsula के चारों तरफ कौन सी major water body है? You can write Indian Ocean. Okay. So in the west we have Arabian Sea, in the east we have Bay of Bengal, and in the south we have Indian Ocean. आप इन तीनों में से कोई भी राइट कर सकते हैं. नेक्स्ट वन, एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल लिविंग इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. सो क्या इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है ऑफ द पीपल लिविंग इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? यू कैन राइट टूरिज्म, fishing. Okay. Then number 5, an important port of coastal India. तो coastal India के important port में कौन कौन से हैं? You know the name. चेन्नई, कोचीन, विशाखापट्टनम, okay, Calcutta. So you can write any one of them. Okay. Now question number C, give reasons. Number 1, Indian islands are places of major tourist attraction. ओके, सो वी हैव टू गिव रीज़न कि इंडियन आइलैंड जो है वो मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन के प्लेसेस क्यों हैं. राइट. सो यू कैन राइट द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वॉट यू कैन राइट, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटी ऑफ दीज आइलैंड ग्रुप्स अट्रैक्ट टूरिस्ट फ्रॉम फार. सो वाई दे आर अ मेजर अट्रैक्शन, दीज आइलैंड्स? बिकॉज दे हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटी. ओके, तो क्या आंसर है आपका? बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटी. और आप आंसर क्या लिख सकते हैं? यू कैन राइट फ्रॉम हेयर, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटी ऑफ दिस आइलैंड ग्रुप अट्रैक्ट टूरिस्ट फ्रॉम फार. आप इस तरीके से लिख सकते हैं. ओके. देन द नेक्स्ट वन, नंबर 2, प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल लिविंग इन डेक्कन प्लेटो इज माइनिंग. सो वाई जो है मेन ऑक्यूपेशन डेक्कन प्लेटो में रहने वाले लोगों का माइनिंग है? Because Deccan Plateau is rich in minerals. क्या रीज़न है? Because Deccan Plateau is rich in minerals. This is your answer. Number 3, coastal area of India are important trade centers. So coastal area of India are important trade centers. Why? आप बता सकते हैं कि क्यों जो है कोस्टल एरिया जो है इंडिया के वो इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स हैं? सो द आंसर इज बिकॉज कोस्टल इंडिया हैज़ मैनी बिग एंड स्मॉल पोर्ट्स. तो जहाँ पे पोर्ट होंगे वहाँ पे क्या होगा? कार्गो आएगा भी और वहाँ से कार्गो जाएगा भी. सो कार्गो लोड भी होगा, कार्गो डिस्चार्ज भी होगा. ठीक है. एंड व्हेन दिस एक्टिविटी टेक प्लेस, जहाँ पे कार्गो जो है
इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, लोड डिस्चार्ज हो रहा है, वहाँ पे क्या होगा, ट्रेड एक्टिविटीज़ होंगी, ट्रेड सेंटर बनेगा. सो क्या आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का, कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया आर इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स बिकॉज ऑफ मैनी स्मॉल एंड बिग पोर्ट्स. ठीक है. नंबर 4, अंडमान एंड निकोबार हैव हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर. सो दिस इज द आंसर. बिकॉज, सिंस की जगह पे आप लिखेंगे बिकॉज दीज आइलैंड्स lie close to the equator. ओके, तो जो आइलैंड इक्वेटर के पास में होगी कोई भी जगह, तो क्या होगा, क्लाइमेट विल बी हॉट एंड वेट थ्रू आउट द ईयर, जो भी प्लेस इक्वेटर के पास होगा. सो आंसर क्या था उस क्वेश्चन का, बिकॉज दीज आइलैंड्स लाई क्लोज टू द इक्वेटर. क्लियर. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर डी. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर सेंट्रल हाईलैंड्स. ओके, सो सेंट्रल हाईलैंड क्या होता है. सो योर आंसर इज हेयर. आपका आंसर कहाँ से है, यहाँ से. द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर इज कॉल्ड सेंट्रल हाईलैंड. ठीक है, क्लियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ पीपल ऑन कोस्टल रीजन्स. आपको क्या है, जो लोग रहते हैं कोस्टल रीजन में उनकी लाइफ डिस्क्राइब करनी है. कहाँ पे, कोस्टल रीजन में. सो व्हाट यू कैन राइट, आप यहाँ से लिख सकते हैं, फिशिंग एंड ट्रेडिंग आर द की एक्टिविटीज़ ऑफ द पीपल ऑफ द रीजन. ये तो हो गया एक. और दूसरा आप क्या लिख सकते हैं, दैट वैरायटी ऑफ languages are spoken in this region like Tamil, Telugu, Kannada, Konkani, Gujarati, Marathi and many more. Okay, so you can write these 2 points describing the life of people in the coastal area. Now what is the next one, describe the Lakshadweep Islands. So number 4, describe the Lakshadweep Island. So इसमें आप क्या क्या राइट कर सकते हैं, द लक्षद्वीप आइलैंड्स आर 36 इन नंबर्स. ये नंबर 1 हो गया. ठीक है. देन नंबर 2 यू कैन राइट, नंबर 2, कवारत्ती सर्व्स एज द कैपिटल ऑफ दिस यूनियन टेरिटरी. देन नंबर 3 यू कैन राइट, फिशिंग एंड कोकोनट कल्टिवेशन आर द मेन 2 ऑक्यूपेशन. राइट. देन यू कैन राइट, नंबर 4 यू कैन राइट, it is famous place for tourist attraction and water sports like scuba diving, snorkeling, surfing. Okay, and these group of islands have extraordinary beauty. Okay, now next one, how many islands form Andaman, Nicobar and Lakshadweep आइलैंड्स रेस्पेक्टिवली मतलब सीक्वेंस में. सो यू कैन राइट 572 आइलैंड्स फॉर्म अंडमान एंड निकोबार एंड 36 आइलैंड्स फॉर्म लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. क्लियर. नाउ डू यू नो द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन टेरिटरी इन द इंडिया इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. सो अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो इंडिया के सदर्न मोस्ट टिप है. ठीक है. देन दीज आइलैंड्स इन 2004 हैव फेस्ड सुनामी. आप सबको सुनामी का नाम पता है ना. एंड इससे क्या हुआ, जो ये आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार, ये पार्शली सबमर्ज हो गया वाटर में, पानी में डूब गया पार्शली. सबमर्ज मतलब डूबना, SUBMERGED मीन्स सबमर्ज्ड, डूब गया. सो नाउ यू ट्राई टू फाइंड आउट मोर अबाउट दिस. वन मोर थिंग जो हमने पढ़ा इसमें कि हमारे जो कोस्टल एरियाज़ हैं दे आर नीदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड. ना तो बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं ना बहुत ज़्यादा कोल्ड होते हैं.
सो इसके एडवांटेज भी हैं एंड एट द सेम टाइम डिसएडवांटेज भी हैं. सो आप अपने हिसाब से सोच के यू कैन राइट what are the advantages and what are the disadvantages of such climate, right? And how you can overcome these problems. जो वहाँ पे problems हैं because of the climate, उससे आप कैसे आप जो है overcome कर सकते हैं, कैसे उससे आप छुटकारा पा सकते हैं, right? One more thing, जो natural resources होते हैं उनको हमें बड़े judiciously use करना चाहिए. So all the नेचुरल रिसोर्सेज विच इंक्लूड्स इवन वाटर, पानी जो है वो नेचुरल रिसोर्स है. सिमिलरली मिनरल्स जो हमें मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, दैट दे आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज. सो ऐसे रिसोर्सेज को जिन्हें हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ह्यूमंस प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उन्हें हमें क्या है बहुत जुडिशियसली यूज़ करना चाहिए. जुडिशियसली यूज़ मतलब बहुत केयरफुली, जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे हमें यूज़ करना चाहिए. बिकॉज वी कैन नॉट रिप्रोड्यूस देम, हम उन्हें हमसे नहीं बना सकते. यू नो, हमसे मतलब वी कैन नॉट, ह्यूमन्स कैन नॉट मेक देम, दे आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज. दैट इज़ वाई इवन वाटर, यू शुड नॉट वेस्ट वाटर. आप पानी की एक बूंद भी जो है प्रोड्यूस नहीं कर सकते. दे आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज, राइट? With this we have completed our chapter. Go through the questions on your own. Thank you.